Hello students, in this lecture we are going to start the chapter depreciation. Depreciation is the permanent decrease in the value of an asset due to use and lapse of time. Depreciation की है students? Depreciation ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Permanent decrease होना value of the asset. ਐਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਔਰ ਲੈਪਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 25,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ 25,000 ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ 25,000 ਦਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੇ 5 ਸਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ ਕੋਜ਼ਿਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਜ਼ਿਸ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੋਜ਼ਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਲਾਈਕ ਫਾਇਰ ਫਲੱਡਸ ਆ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਡਿਕੇ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਵੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਈਕ ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਲਾਈਕ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੂੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ obsolescence means outdated ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਐਡਿਕੁਇਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇਨਐਡਿਕੁਇਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਲਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਪਾਸਿਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਲਾ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ
जो कोल है कोले ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ऑयल ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ੋਸ਼ਨ ये बेसिकली एक्सपायरी डेट होंगे कि एक्सपायर हो जाना राइट जो एसिड्स होंगे लाइक प्लांटेशन एनिमल्स ये अपनी वैल्यू है वो रिड्यूस कर लेंगे लूज कर लेंगे विद द पासिस ऑफ टाइम ये अपनी एज होंगी इन्हों की प्लांट्स की ठीक है वो आपका एक पीरियड तक रेंदे है उस तो बाद एक्सपायर हो जाते हैं इन्हों की एज की सर्टेन लिमिट होंगी है प्लांटेशनस और एनिमल्स ठीक है डिप्लीशन के केस दे ऑयल माइनस और कोल माइनस इसी कॉजेस किन्ना करके डेप्रीसीएशन होंदा है उस तो बाद डेप्रीसीएशन करने की नीड क्यों भी नीड फॉर चार्जिंग डेप्रीसीएशन फर्स्ट इज करैक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डेप्रीसीएशन एसिड के उत्ते तां लगाया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट हो रहा है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट करैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की जाए ट्रू एंड फेयर व्यू इन बैलेंस शीट जो आप लास्ट से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनैशियल स्टेटमेंट आप बनावांगे जिस आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ठीक है बैलेंस शीट की है ताकि अपन बैलेंस शीट एग्जैक्ट एसिड्स और लायबिलिटीज पता चल जाए तां करके आप डेप्रीसीएशन कैलकुलेट करते हैं एक्यूरेट असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एग्जैक्ट कॉस्ट पता चल जाए ठीक है डेप्रीसीएशन भी एक कैलकुलेट करने लिए जो कॉस्ट प्रोडक्शन की जिन्नी कॉस्ट हुई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो डेप्रीसीएशन है वो भी एक्सपेंसिव होंगे ठीक है उसनों भी आप ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच इसलिए कि अपन करैक्ट अपन कॉस्ट की वैल्यू पता चल जाए तां करके आप जो कि डेप्रीसीएशन कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली डेप्रीसीएशन जो डेप्रीसीएशन है ये चार्ज कितों होंदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के विचों आप इसनों चार्ज करते हैं डेप्रीसीएशन ठीक है इस दे नाल की है प्रॉफिट एंड लॉस के विचों प्रॉफिट हो रहा होंदा वो अपना रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू डेप्रीसीएशन क्योंकि डेप्रीसीएशन एक तरह का खर्चा ही होंदा एक्सपेंस होंदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सो अपन करैक्ट प्रॉफिट्स पता चल जाए ताकि आप उसके जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकी उसके लिए भी अपन डेप्रीसीएशन चार्ज करने की लड़ पैंती है सेविंग्स इन इनकम टैक्स अगर स्टूडेंट्स आप डेप्रीसीएशन जो अपने प्रॉफिट के लैस नहीं किया होगा इट मीनस प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहे होंगे ठीक है ताकि इनकम टैक्स भी ज़्यादा होगा सो अगर आप डेप्रीसीएशन कैलकुलेट कर लाँगे और अपने प्रॉफिट के जो डेप्रीसीएशन की अमाउंट है वो लैस कर देंगे अपने प्रॉफिट्स भी करैक्ट शो होंगे डिक्रीज वैल्यू शो होगी ना जो एग्जैक्ट नहीं ठीक है उसके सही अमाउंट आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करांगे इस कि अपना इनकम टैक्स भी सेव होएगा ये ना करके आप डेप्रीसीएशन चार्ज करते हैं उस तो बाद मैथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीसीएशन किमें चार्ज कर सकते हैं फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मैथड है इस स्टूडेंट्स आप सेम डेप्रीसीएशन अमाउंट है वो एसिड दे विचों लैस करी जावांगे जिन्ने साल तक दी अपनी एसिड है वो चलेगी देखो पढ़ते हैं आप स्ट्रेट लाइन मैथड अंडर दिस मैथड अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसिड इज राइट ऑफ एनुअली so that by the time acid is worn out its value in the books is reduced to 0 or residual value एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होंदा है वो अमाउंट है हर एक साल ओरिजिनल कॉस्ट जिन्नी भी होगी उसके विचों आप राइट ऑफ करी जावांगे ताकि आप अपने बुक्स के विचों उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू है जो ज़्यादा 0 होगी या उसकी कोई रेजिड्यूल वैल्यू आप अपन क्वेश्चन के विच रेजिड्यूल वैल्यू की होंदी स्टूडेंट्स मीनस टू से कि अगर मैं कहां मैंने मोटरसाइकिल परचेज किया है ठीक है 2010 दे विच परचेज किया सी अगर मैं उसनों 2030 दे विच सेल कर दियाँ तो मैनू 2010 दे विच मैं मोटरसाइकिल खरीदा सी 50,000 का 50,000 का ठीक है अगर मैं कमां मैं 2030 के विच सेल कर दियाँ तो उसका मैनू 15,000 रुपये मिल जाएंगे ठीक है एक ही है मेरी रेजिड्यूल वैल्यू
कुछ एसिड्स होंगी है जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, कुछ एसिड्स होंगी है जिसकी वैल्यू रेजिड्यूल वैल्यू भी हो सकती है, मीनस कुछ लास्ट के उत्ते स्क्रैप अमाउंट भी मिल जाती है। ठीक है, ਤਾਂ करके की किया गया कि ਉਹ वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ शो कर ਸਕੀਏ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ स्ट्रेट लाइन मैथड ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। डेप्रीसीएशन किमें कैलकुलेट किया जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट जिन्हें दी एसिड है जो परचेज की है उसके स्क्रैप वैल्यू मीनस रेजिड्यूल वैल्यू लैस करांगे और उसकी एस्टीमेटेड लाइफ मीनस एस्टीमेटेड की कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल 20 साल का वधिया चलूगा। ठीक है, ओके एस्टीमेट लाइफ होगी वो क्वेश्चन के अपन गिवन होगी, उस तो आप डेप्रीसीएशन कैलकुलेट करांगे। फिर आप हरेक साल जो फिक्स अमाउंट डेप्रीसीएशन की अमाउंट आएगी उसनों आप हरेक साल जो अमाउंट होएगी कॉस्ट होएगी उसके विचों रिड्यूस करी जावांगे और एंड के उत्ते जो भी रेजिड्यू वैल्यू या 0 तक आप वैल्यू राइट ऑफ कर देंगे एसिड की। नैक्सट है कुछ जर्नल एंट्री से देखो, जो डेप्रीसीएशन इज प्रोवाइडेड वैन depreciation is provided on asset। जो डेप्रीसीएशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि है डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, जी भी एसेट के उत्ते डेप्रीसीएशन लग गया डेप्रीसीएशन आप डेबिट करांगे बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट है, ये की एक्सपेंस है। ठीक है, उस तो बाद है फाइनल अकाउंट्स दे विच जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुंदा है उस दे विच आपां डेप्रीसीएशन ट्रांसफर करांगे। ठीक है, फिर आप एंट्री की पावांगे, देखो ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसीएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उदों की पावांगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसीएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उदों डेप्रीसीएशन ट्रांसफर कर देना। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई डेप्रीसीएशन चार्ज किया एसिड के उत्ते, एसिड की वैल्यू घट गई। ठीक है, डेप्रीसीएशन डेबिट करता, उस तो बाद डेप्रीसीएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रांसफर करता। दो एंट्री याद होनी चाहिए। उस तो बाद हम आप क्वेश्चन करांगे स्टूडेंट, उसके आप एसिड का अकाउंट बनावांगे। ठीक है, जो अपन क्वेश्चन आऊगा पर्टिकुलर एसिड दी होगी अपन एसिड बनावांगे, उसके उत्ते आप डेप्रीसीएशन कैलकुलेट करांगे। फिर आप डेप्रीसीएशन हरेक साल जिन्ना भी अपना निकल के आऊगा उसनों लगावांगे और वैल्यू निकालांगे एसिड से। क्वेश्चन देखो, हरजिंदर ट्रेडर्स परचेज अ प्लांट फॉर पीस 10,000 on 1st April 2015। Harjinder Traders purchased a plant for 10,000 on 1st April 2015. Installation charges were 2,000। परचेज किया प्लांट 10,000 का 1st April 2015 ਨੂੰ उसके उत्ते इंस्टॉलेशन चार्जिस भी पे है 2,000 जो कि आप प्लांट की कॉस्ट के विच ही प्लस करांगे तो अपने को टोटल अमाउंट होगी प्लांट की 12,000। ठीक है, और प्लांट इज एस्टिमेटेड टू हैव स्क्रैप वैल्यू ऑफ रुपीज 1,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। कहते 5 साल है जो प्लांट है उसकी यूजफुल लाइफ दसी हुई कि 5 साल तक ही चलेगा ही, और 5 साल बाद अगर उसको सेल कर दें तो इससे सानू 1,000 रुपीज़ तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ही स्क्रैप वैल्यू रेजिड्यूल वैल्यू। प्रिपेयर द प्लांट अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स चार्जिंग डेप्रीसीएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मैथड। बुक्स कदों क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर। चलो बनाने आप प्लांट का अकाउंट बनाने आप। ठीक है, सॉल्यूशन सब तो पहला की कैलकुलेट करांगे डेप्रीसीएशन, जो असी प्लांट खरीदा उसके उत्ते डेप्रीसीएशन कितना लगे। डेप्रीसीएशन लिए आप पहला की करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट के विचों स्क्रैप वैल्यू लैस करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी 10,000 प्लस 2,000।
10,000 परचेज कॉस्ट प्लस 2,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस 12,000, ठीक है। रीजनल कॉस्ट 12,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,000 है, लैस कर देंगे, डिवाइड बाय जिन्नी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, 11,000 डिवाइड बाय 5 अपने को आ गया 2200, ठीक है। एक ये डेप्रीसीएशन है, डेप्रीसीएशन आपने 3 साल लगाना है, ठीक है। 3 साल बाद आप प्लांट की वैल्यू है दसनी है। प्रिपेयर द प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स चार्जिंग डेप्रीसीएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मैथड आप यूज़ करांगे जो मैं तुहानू सिखाया है। प्लांट अकाउंट, ठीक है, प्लांट अकाउंट बना रहे हैं आप, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये अपने कॉलम्स हो गए, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये अपना स्पेसिमन रहेगा। सब तो पहले 1 अप्रैल 2015 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, प्लांट परचेज किया सी, प्लांट परचेज 10,000 का प्लांट से इंस्टॉल, उसमें इंस्टॉल करन 2,000 का उपर खर्चा आ गया सी, ठीक है। टोटल 12,000 का अपने प्लांट लैता सीगा। सो एंट्री की होगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो टू बैंक आप पा देंगे अकाउंट के विच किन्ने दा 12,000 का। उस तो बाद अपने कोल फर्स्ट ईयर आप डेप्रीसीएशन चार्ज करांगे 2,200 रुपीज़, ठीक है। जो डेप्रीसीएशन चार्ज होगा 12,000 की एसेट से ना, 12,000 की एसेट है, ठीक है। 12,000 की एसेट के उत्ते डेप्रीसीएशन चार्ज होगा 31 मार्च 2016 आप देखा डेप्रीसीएशन बाय डेप्रीसीएशन आप एंट्री की पाने होने डेप्रीसीएशन की, डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, सो बाय डेप्रीसीएशन आ जाएगा 12,000 के उत्ते विचों 12,000 के उत्ते अपने 2,200 बस सीधा अपन डेप्रीसीएशन निकाल से 2,200 डेप्रीसीएशन लगेगा। उस तो बाद आप की करना है, बैलेंस कैरी डाउन निकालना है बाय बैलेंस CD, 12,000 के विचों 2,200 लैस करो 9,800 अपने को बैलेंस कैरी डाउन आ गया। उस तो बाद 12,000 का 12,000 टोटल कर लेंगे, ठीक है। हुण नैक्सट ईयर की वारी आ गई 1 अप्रैल 2016 की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग तो अपने को कितना पे 9,800 बैलेंस पे है, उसनों आप ब्राउ डाउन कर देंगे टू बैलेंस ब्राउ डाउन, किन्ना बैलेंस पे एसेट का 9,800, ठीक है। हुण साल का एंड फिर तो आ गया, उसके उत्ते डेप्रीसीएशन किन्ना चलूगा 2,200, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग 2,200 रुपया ही लगावांगे हर एक साल, ठीक है। सो 31 मार्च 2017 में इतने डेप्रीसीएशन कितना चार्ज होगा 2,200 बाय डेप्रीसीएशन 2,200। उस बाद फिर तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 9,800 लैस 2,200, 7,600 बैलेंस बच गया। हुण थर्ड ईयर की बारी आई, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग तो अपने को कितना पे 2017 1 अप्रैल 2017 में बैलेंस कितना पे 7,600, इसनों ब्रॉड डाउन कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,600, ठीक है। उस तो बाद साल का एंड आया, फिर तो डेप्रीसीएशन चार्ज होगा 31 मार्च 2018 में बाय डेप्रीसीएशन 2,200 सेम, ठीक है। बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,400, 7,600 के विचों 2,200 रुपया लैस करके अपने को बैलेंस कैरी डाउन आ गया 5,400।
क्योंकि स्टूडेंट्स इन्होंने 3 साल का क्या सी 3 साल का अपन अकाउंट बना के दिखाओ, इसलिए आप इत्थे एंड करांगे। अदरवाइज आप जिन्ने तक जो एसिड की वैल्यू है वो घट के 0 नहीं होंगी उन्ने तक आप अकाउंट बना के जा सकते हैं। ठीक है, ये सी अपना प्लांट अकाउंट। बेसिकली स्टूडेंट जो स्ट्रेट लाइन है उसके की होंगे सेम जो सेम डेप्रीसीएशन है वही लगूगा हर एक साल। ठीक है, देखो 2200 इतने भी 2200 ठीक है, हर एक साल आप 2200 चार्ज किया स्ट्रेट लाइन सेम अमाउंट ऑफ डेप्रीसीएशन चार्ज किया होंगे।